ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی بہت دور دراز کے علاقے میں جہاں پہاڑوں کی چوٹیاں آسمان کو چھوتی تھیں اور دریاؤں کا پانی نیلم کی طرح چمکتا تھا، وہاں روشن آباد نام کا ایک عظیم اور خوبصورت کہانیوں والا ملک آباد تھا۔ اس ملک کے بادشاہ کا نام سلطان شہباز تھا۔ سلطان شہباز ایک نہایت رحم دل اور انصاف پسند حکمران تھا جس کی رعایا اسے بہت پیار کرتی تھی۔ بادشاہ کی زندگی میں ہر خوشی موجود تھی، لیکن اس کی سب سے بڑی دولت اس کے 4 بچے تھے۔ اس کے 3 بڑے بیٹے تھے، شہزادہ ارسلان، شہزادہ شاہزین اور شہزادہ جاویار۔ یہ تینوں بھائی اپنی بہادری، طاقت اور خوبصورتی میں اپنی مثال اب تھے، لیکن ان تینوں بھائیوں کی جان اپنی سب سے چھوٹی بہن شہزادی جرمین میں بستی تھی۔ جرمین کسی انسانی بچی سے زیادہ ایک جادوئی پری لگتی تھی۔ اس کی آنکھیں گہری نیلی جھیل جیسی تھیں جن میں ہمیشہ معصومیت اور پیار چمکتا تھا۔ اس کے بال سنہری روشنی کی طرح لمبے اور گھنے تھے، جو ہوا میں اڑتے تو لگتا جیسے دھوپ لہرا رہی ہو۔ اس کی آواز اتنی میٹھی تھی کہ جب وہ بولتی تو محل کے باغ میں گانے والے پرندے بھی خاموش ہو کر اسے سننے لگتے۔ تینوں شہزادے اپنی چھوٹی بہن پر اپنی جان چھڑکتے تھے۔ شہزادہ ارسلان جو سب سے بڑا تھا، وہ روزانہ صبح جرمین کے لیے اپنے ہاتھوں سے باغ کے سب سے خوبصورت پھول چنتا۔ شہزادہ شاہزین اس کے لیے دور دراز کے ملکوں سے عجیب و غریب کھلونے اور ریشم کے لباس لاتا، اور جاویار جو سب سے شرارتی تھا، وہ سارا دن جرمین کو کندھوں پر بٹھا کر محل میں گھومتا اور اسے ہنستا رہتا۔ ان چاروں بہن بھائیوں کا پیار دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو جدا نہیں کر سکتی۔ جرمین کی ماں ملکہ جب وہ بہت چھوٹی تھی تب ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، اس لیے ان تینوں بھائیوں نے کبھی جرمین کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ وہ اسے پھولوں کی طرح رکھتے تھے۔ محل کے کسی ملازم کو اجازت نہیں تھی کہ وہ جرمین سے اونچی آواز میں بات بھی کرے۔ بادشاہ بھی اپنی بیٹی کو دیکھ کر اپنی مرحوم بیوی کو یاد کرتا اور آنسو بہا کر اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیتا۔ زندگی بہت حسین گزر رہی تھی اور محل ہر وقت قہقہوں سے گونجتا رہتا تھا، لیکن خوشیوں کو ہمیشہ کسی نہ کسی کی بری نظر لگ ہی جاتی ہے۔ روشن آباد کی انہی خوشیوں کو ایک بہت ہی کالی اور ظالم نظر کھا گئی۔ ملک کی سرحد کے پار ایک خفیہ جنگل تھا جسے کونسیا کہا جاتا تھا۔ وہاں ایک انتہائی خوبصورت لیکن دل کی انتہائی کالی اور ظالم جادوگرنی رہتی تھی جس کا نام دلربا تھا۔ دلربا نے اپنی جادوئی طاقت سے اپنے چہرے کو ایک حسین جوان لڑکی جیسا بنا لیا تھا، لیکن اس کی روح صدیوں پرانی اور زہر سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے کئی برسوں سے روشن آباد کی دولت اور تخت پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ ایک دن جب بادشاہ شہباز شکار کے لیے جنگل میں گیا تو دلربا نے ایک بے سہارا اور زخمی عورت کا بھیس بدل کر بادشاہ کے راستے میں گرنے کا ناٹک کیا۔ بادشاہ چونکہ بہت رحم دل تھا، اس نے اس عورت کو محل لا کر اس کی دیکھ بھال کرنے کا فیصلہ کیا۔ دلربا کی خوبصورتی اور اس کی میٹھی میٹھی باتوں نے بادشاہ پر ایسا جادو کیا کہ کچھ ہی مہینوں میں بادشاہ نے اس سے شادی کرنے کا اعلان کر دیا۔ محل میں سب حیران تھے، لیکن بادشاہ کے سامنے کسی کی بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ تینوں شہزادے بھی اس شادی سے خوش نہیں تھے، لیکن وہ اپنے باپ کی عزت کرتے تھے۔ جب دلربا محل کی ملکہ بن کر آئی تو اس نے محل پر اپنا جادوئی اثر ڈالنا شروع کر دیا۔ اس کا مقصد بادشاہ کو اپنے قابو میں کر کے تینوں شہزادوں کو راستے سے ہٹانا تھا تاکہ وہ اکیلی پورے ملک کی مالک بن جائے۔ لیکن جلد ہی دلربا کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ تینوں شہزادوں کی طاقت اور ان کا اتحاد صرف ایک وجہ سے ہے، اور وہ وجہ شہزادی جرمین ہے۔ جرمین وہ دھاگا تھی جس نے ان تینوں بھائیوں کو اور بادشاہ کو آپس میں جوڑ کر رکھا تھا۔ دلربا جب بھی جرمین کی معصومیت اور اس کے حسن کو دیکھتی تو حسد کی آگ میں جلنے لگتی۔ محل کا ہر شخص جرمین کی تعریف کرتا تھا، جبکہ دلربا کو کوئی دل سے قبول نہیں کر رہا تھا۔ ظالم سوتیلی ماں نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک جرمین اس محل میں ہے اس کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا، لیکن وہ جرمین کو جان سے نہیں مار سکتی تھی، کیونکہ اگر جرمین کو خراش بھی آتی تو اس کے تینوں بھائی آسمان سر پر اٹھا لیتے اور محل کا کونا کونا چھان مارتے۔ دلربا کو ایک ایسی گہری اور کالی سازش کی ضرورت تھی جو جرمین کو ہمیشہ کے لیے زندہ تو رکھے، لیکن اسے ایسی موت دے جو مرنے سے بھی زیادہ دردناک ہو۔ کئی راتوں تک دلربا اپنے خفیہ کمرے میں کالے جادو کی پرانی کتابیں پڑھتی رہی۔ آخرکار اسے ایک ایسا منتر مل گیا جو کسی کی بھی زندگی کو جہنم بنا سکتا تھا۔ یہ منتر تھا بھول کا جادو۔ اس جادو کے تحت جس کو نشانہ بنایا جاتا دنیا کا ہر انسان اسے بھول جاتا۔ اس کے اپنے خون کے رشتے، اس کے دوست، اس کے چاہنے والے، سب کے دلوں سے اس کی یاد ایسے مٹا دی جاتی جیسے وہ کبھی پیدا ہی نہ ہوا ہو۔
इससे बड़ा अजाब किसी इंसान के लिए क्या हो सकता था कि वो जिंदा हो, इसके सामने इसके अपने खड़े हों और वो इसे पहचाने से इनकार कर दे। दिलरुबा के होंठों पर एक इंतहाई खौफनाक मुस्कुराहट फैल गई। इसने इस जादू को तैयार करने के लिए 3 चीजें जमा कीं: एक रोते हुए यतीम बच्चे के आंसू, एक ऐसे परिंदे का पर जो रास्ता भूल गया हो, और शैतानी दरख्त की राख। अमावस की इस काली रात में जब पूरा महल गहरी नींद सो रहा था, दिलरुबा ने उन सब चीजों को मिलाकर एक काले रंग का जहरीला शरबत तैयार किया। इस शरबत में से बदबू और धुआं निकल रहा था। इस रात इसने अपनी जादुई ताकत से वो जहरीला शरबत महल के तमाम पानी के चश्मों में मिला दिया। सुबह जब सब लोग उठे और उन्होंने पानी पिया तो दिलरुबा का काला जादू उनके दिलों और दिमागों में दाखिल हो गया। जादू का असर सिर्फ एक शख्स पर नहीं होना था, और वो थी खुद जर्मीन, क्योंकि सजा इसे भुगतनी थी। वो सुबह जर्मीन के लिए जिंदगी की सबसे खौफनाक सुबह थी। वो हमेशा की तरह चहकती हुई खुशियों से भरी अपने बिस्तर से उठी। इसने अपना इंतहाई खूबसूरत गुलाबी लिबास पहना और भागती हुई अपने सबसे बड़े भाई शहजादा अरसलान के कमरे की तरफ गई। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई और पीछे से जाकर अपने भाई के गिले लग गई। भाईजान, आज हम कहाँ घूमने जाएंगे? इसने इंतहाई मासूमियत और मिठास से पूछा। लेकिन अरसलान ने जिस तरह मोड़कर इसे देखा, जर्मीन का दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। अरसलान की उन निगाहों में जिनमें हमेशा प्यार का समंदर होता था, आज वहां सिर्फ और सिर्फ अजनबियत, गुस्सा और ठंडक थी। तुम कौन हो लड़की? और मेरी इजाजत के बगैर मेरे कमरे में दाखिल होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरसलान ने इसे धक्के देकर खुद से दूर किया। जर्मीन जमीन पर गिर गई। इसकी नीली आंखों में हैरत और दुख के आंसू जमा होने लगे। भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जर्मीन हूं, आपकी सबसे छोटी लाडली बहन जर्मीन, इसने रोते हुए कहा। बकवास मत करो, अरसलान चलाया। मेरी कोई बहन नहीं है। हम सिर्फ 3 भाई हैं। पहरेदारू, इस पागल औरत को पकड़ लो। अरसलान की आवाज सुनकर पहरेदार भागते हुए अंदर आए। जर्मीन की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वो वहां से उठी रोती हुई और घबराई हुई अपने दूसरे भाई शाज़ैन के कमरे की तरफ भागी। शाज़ैन भाई, शाज़ैन भाई, मुझे बचाएं। अरसलान भाई को कुछ हो गया है, वो मुझे नहीं पहचान रहे। जर्मीन ने रोते हुए शाज़ैन के कदमों में गिरकर कहा। शाज़ैन ने इंतहाई नफरत और हिकारत से इस लड़की की तरफ देखा जिसके पांव में लगने वाला कांटा भी कभी उसकी जान निकाल देता था। तुम कौन हो भिखारन? मेरे कदम छोड़ो और यहां से निकल जाओ, शाज़ैन ने इसे ठोकर मारी। जर्मीन का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। इसका दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। ये मजाक नहीं था, ये ख्वाब नहीं था। इसके अपने प्यारे भाई, जिनकी वो जान थी, इसे एक आम सड़क छाप लड़की की तरह धुतकार रहे थे। वो चीखती चलाती जावियार के पास गई। इसने अपने बाप सुल्तान शहबाज के आगे हाथ जोड़े। इसने रू रू कर अपने बचपन की यादें सुनाईं। इसने अपने भाइयों को वो खिलौने इसने रू रू कर अपने बचपन की यादें सुनाईं। इसने अपने भाइयों को वो खिलौने दिखाए जो उन्होंने इसे दिए थे। लेकिन जादू इतना गहरा था कि किसी को कुछ याद नहीं आया। सबके दिलों पर जैसे किसी ने काला पत्थर रख दिया था। दिलरुबा महल की ऊंची खिड़की से ये सब देखकर हंस रही थी। इसकी साजिश कामयाब हो चुकी थी। इस पागलचूर और धोखेबाज लड़की को महल से बाहर निकालकर जंगल में फेंक दिया जाए और दोबारा ये कभी महल के अर्द गिर्द नजर न आए। दिलरुबा ने हुक्म सादिर किया। बादशाह और तीनों शहजादे दिलरुबा की इस बात पर राजी थे। पहरेदारों ने जर्मीना के नाजुक बाजुओं को सख्ती से पकड़ा और इसे घसीटते हुए महल से बाहर ले जाने लगे। जर्मीना का रोना और उसकी चीखें इतनी दर्दनाक थीं कि आसमान पर बादल भी गरजने लगे और बारिश शुरू हो गई। भाईजान, मुझे मत निकाले, मैं मर जाऊंगी अकेले। मैं आपकी जर्मीना हूं, मैं भूली नहीं हूं। आप लोग मुझे कैसे भूल गए? वो रोते रोते निढाल हो चुकी थी, लेकिन किसी का दिल नहीं बसा। महल के दरवाजे इसके पीछे बड़ी बेदर्दी से बंद कर दिए गए और वहां खड़ी थी वो मजलूम शहजादी जिसके सर पर कभी ताज होता था। आज वो बारिश में भीगते हुए अकेली, अजनबी और लावारिस हो चुकी थी। इसने आखिरी बार मोड़कर इस महल को देखा जहां इसने अपनी सारी जिंदगी इतने लाड और प्यार से गुजारी थी। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर कीचड़ में गिर पड़ी। जब इसकी आंख खिली तो वो इस खौफनाक जंगल के बिल्कुल अंदर थी।
पहरेदारों ने इसे वहां फेंक दिया था जहां यहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता था। जंगल में हर तरफ अंधेरा, सूखे दरख्त और भेड़ियों की ड्रोनी आवाजें गूंज रही थीं। जर्मीना का गुलाबी लिबास जगह जगह से फट चुका थे। इस पर कीचड़ और मिट्टी लगी हुई थी। इसके नाजुक पांव, जिन्हें कभी जमीन पर चलने नहीं दिया जाता था, आज नंगे थे और उन्हें कांटे चुभ रहे थे। वो उठी और डर के मारे कांपते हुए चलने लगी। कोई है, मुझे बचाओ, मुझे मेरे भाइयों के पास जाना है। वो रोते हुए खुद से बातें कर रही थी। पूरा दिन और पूरी रात वो इस भयानक जंगल में भूखी प्यासी भटकती रही। इसकी आंखें रू रू कर सूज चुकी थीं। इसके नर्म और सफेद हाथ कांटों वाली झाड़ियों को हटाते हटाते लहूलुहान हो चुके थे। हर एक कदम पर इसे अपने भाइयों की याद आती थी। वो रोती सिसकती और जमीन पर गिर जाती। क्यों अल्लाह, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? किस गुनाह की सजा है कि मेरे अपने मुझे भूल गए? इसकी इस फरियाद पर आसमान के फरिश्ते भी रू पड़े होंगे। चलते चलते इसे जंगल के बीचों बीच एक टूटी फूटी पुरानी लकड़ी की झोंपड़ी नजर आई। ये किसी लघारे की झोंपड़ी थी जो मुद्दतों पहले वहां से जा चुका था। जर्मीना ने इसी झोंपड़ी को अपना ठिकाना बना लिया। एक शहजादी जो रेशम के बिस्तर पर सोती थी, आज मिट्टी और सूखे पत्ते पर लेटी दुख और तकलीफ में रो रही थी। इसने जंगल में अलिफाग्नी वाले खट्टे मीठे फल खाकर अपनी भूख मिटाना शुरू की। पास बहते हुए एक छोटे से चश्मे से वो पानी पीती। वक्त गुजरने लगा। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना और फिर साल। जर्मीना इस खौफनाक जंगल में बिल्कुल अकेली थी। लेकिन इसकी मासूमियत और उसके दिल की पाकी ऐसी थी कि जंगल के जानवर भी उसके गम में शरीक हो गए थे। परिंदे इसके कंधे पर आकर बैठते और उसके आंसू अपने प्रों से साफ करते। एक सफेद हिरन इसके पास आता और जर्मीना अपने नंगे जख्मी पांव उसकी गर्म खाल में छुपाकर सोती। जर्मीना अब एक बड़ी लड़की बन चुकी थी, लेकिन इसके दिल में अपने भाइयों का गम पहले दिन जैसा ही ताज़ा था। वो सारा दिन झोंपड़ी के बाहर बैठकर मिट्टी से 3 छोटे छोटे मुजस्समे यानी स्टैचूज बनाती और उन्हें अरसलान, शाहजैन और जावियार का नाम देकर उनसे बातें करती रहती। अरसलान भाई, अपने आज मुझे फूल क्यों नहीं लाकर दिए? जावियार भाई, मुझे अपने कंधे पर बिठाई ना। वो पत्थरों से रोते हुए कहती और फिर चीख चीख कर रोने लगती। इसकी आवाज में इतना दर्द होता था कि जंगल के भेड़िए भी इसकी चीखें सुनकर उदास हो जाते थे। रोज रात को वो एक दर्दनाक और मीठी आवाज में वो लोरी यानी लेलाई गाती जो उसकी और उसके भाइयों की सगी माँ उन्हें बचपन में सुनाती थी। ये लोरी इसके भाइयों को बहुत पसंद थी। जब जर्मीना ये लोरी गाती तो जंगल की हवाएं भी उसके साथ साथ रोने लगती थीं। दूसरी तरफ महल में हालात इंतहाई खराब हो चुके थे। दिलरुबा की साजिश कामयाब तो हो गई थी। जर्मीना को सब भूल चुके थे, लेकिन जर्मीना के जाने के बाद जैसे महल की रूह ही मर गई थी। तीनों भाइयों और बादशाह के दिल में हमेशा एक अजीब सा खालीपन, एक उदासी और बेचैनी रहती थी जिसकी उन्हें वजह नहीं मालूम थी। उन्हें लगता था जैसे उनके जिस्म का कोई बहुत खास हिस्सा उनसे छीन लिया गया हो, लेकिन वो ठीक से समझ नहीं पाते थे कि उन्हें क्या कमी महसूस हो रही है। अरसलान ने हंसना छोड़ दिया था, शाहजैन चिड़चिड़ा हो गया था और जावियार तो हर वक्त बीमार और गमगीन रहता था। दिलरुबा पूरे मुख पर अपना जुल्म ढा रही थी। लोगों से भारी टैक्स लेती, बेगुनाहों को कैद करती और बादशाह इस उदासी में इतना गिर चुका था कि वो दिलरुबा को कुछ न कहता। महल के बाग में फूल खिलना बंद हो गए थे। वहां के परिंदे उड़ गए थे। हर तरफ सिर्फ खामोशी और मातम का माहौल था। तीनों शहजादों को हमेशा रातों को अजीब से ख्वाब आते। ख्वाब में उन्हें एक रोती हुई छोटी बच्ची नजर आती जिसकी नीली आंखें और सुनहरी बाल होते। वो बच्ची उनसे पूछती, अपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? लेकिन जैसे ही वो आंख खोलते उन्हें कुछ समझ न आता। एक दिन तीनों भाई उदासी को दूर करने के लिए जंगल की तरफ शिकार पर निकले। वो अपने घोड़ों पर सवार कुआंसिया के इस घने हिस्से में पहुंच गए जहां किसी आम इंसान का आना जाना नहीं था। वहां पहुंचकर अचानक आसमान पर काले बादल घेर आए और एक शदीद तूफान शुरू हो गया। हुआ इतनी तेज थी कि तीनों शहजादों के घोड़े डर कर उन्हें गिराकर भाग गए। तीनों भाई इस खौफनाक जंगल में रास्ता भटक गए। तूफान और बारिश इतनी शदीद थी कि उन्हें सामने का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। चलते चलते वो बिल्कुल इस झोंपड़ी के करीब पहुंच गए जहां जर्मीना रहती थी। सर्दी और डांसिस से उनकी बुरी हालत थी। शाहजैन के पांव में एक जहरीले सांप ने डस लिया जिसकी वजह से वो जमीन पर गिरकर दर्द से चीखने लगा।
अरसलान, मेरा पाँव जहर फैल रहा है। शाहजैन रोते हुए चला हुआ। अरसलान और जावियार घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस घने अंधेरे और तूफान में वो क्या करे। तब उन तूफानी हवाओं के शोर में उन्हें एक बहुत ही मीठी जानी पहचानी और आंसू से भरी हुई आवाज सुनाई दी। ये आवाज बिल्कुल करीब से आ रही थी। वो कोई राहत और सुकून देने वाली लोरी गा रही थी। रख दे अपना सर मेरे कंधे पर, ए मेरे लाल, दुनिया के गम से तुझे बचा लो, ढाल बनकर हर हाल। ये वही लोरी थी, वो लोरी जो उनकी माँ उन्हें बचपन में सुनाया करती थी। ये आवाज सुनते ही तीनों शहजादों के दिलों में एक बिजली सी दौड़ गई। उनका खून जैसे उबलने लगा और आंखों से बेसाख्ता आंसू निकलने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस वीरान जंगल में उनकी माँ की लोरी कौन गा रहा है। अरसलान और जावियार ने शाहजैन को कंधों पर उठाया और इस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही कदमों के फासले पर उन्हें धुंधली रोशनी के पीछे एक टूटी हुई झोंपड़ी नजर आई। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचे, लोरी की आवाज रुक गई। अंदर एक छोटा सा दिया जल रहा था। तीनों भाई जैसे ही अंदर दाखिल हुए, उनकी नजरें झोंपड़ी के कोने में बैठी एक लड़की पर पड़ी। इसने फटे हुए, पुराने मिट्टी से सुने हुए कपड़े पहने थे। इसके बाल बिखरे हुए थे। लेकिन जब इसने चेहरा उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो झोंपड़ी रोशनी से भर गई। ये जर्मीना थी। जर्मीना ने जब उन तीनों को देखा तो इसकी सांसें रुक गईं। वो तीनों भाई जिन्हें देखने के लिए इसकी आंखें सालों से तरस रही थीं, आज इसके बिल्कुल सामने थे। इसकी आंखों में आंसुओं का वो तूफान उमड़ आया जो सालों से रुका हुआ था। इसका दिल चाहा कि दौड़कर उनके गिले लग जाए, उनसे शको करे रोए। लेकिन इसे याद था कि पिछली बार जब वो उनके करीब गई थी तो उन्होंने इसे कितनी बेदर्दी से ठोकर मारी थी। ठोकर मारी थी। इसका दिल खौफ से कांपने लगा। वो सिमट कर और पीछे हो गई। अरसलान ने हैरत से इस खूबसूरत लेकिन बिखरी हुई लड़की को देखा। जादू का असर अभी भी था। वो इसे नहीं पहचान रहा था, लेकिन इसकी आवाज और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने अरसलान के मजबूत दिल को नर्म कर दिया था। ए लड़की, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? हम रोशनाबाद के शहजादे हैं। हमारा भाई मौत के मुंह में है। इसे किसी जहरीले सांप ने डस लिया है। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? अरसलान ने अजीब सी कशिश महसूस करते हुए पूछा। जर्मीना ने जब सुना कि शाहजैन की जान खतरे में है तो इसने अपना सारा खौफ और अपनी पिछली बेइज्जती भुला दी। एक बहन के लिए अपने भाई की जान से ज्यादा प्यारी कोई चीज नहीं होती, चाहे वो भाई इसे पहचाने या ठोकर मार दे। वो दौड़कर शाहजैन के करीब आई। शाहजैन का चेहरा जहर की वजह से नीला पड़ रहा था और वो बेहोशी की हालत में था। जर्मीना की आंखों से मोती जैसे आंसू गिरने लगे। इसने अपने कांपते हुए हाथों से शाहजैन का पांव पकड़ा। सालों जंगल में रहकर जर्मीना ने सीख लिया था कि जहर का इलाज किया होता है। वो जल्दी से बाहर भागी। तूफान की परवाह किए बगैर इसने मिट्टी में दबी हुई संजीवनी बूटी ढूंढी और इसे पत्थर पर पेश कर उसकी मरहम बनाई। वो भागती हुई वापस आई और रोती हुई वो मरहम शाहजैन के जख्मी पांव पर लगाने लगी। आपको कुछ नहीं होगा भाईजान। मेरी जान निकल जाए बेशक, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, जर्मीना सिसकते हुए अपने आंसुओं के साथ कह रही थी। अरसलान और जावियार को अजीब सा झटका लगा। ये अजनबी लड़की उनके दुख में इस तरह क्यों रो रही थी जैसे उनके पांव में नहीं बल्कि इसके अपने दिल में जहर उतर रहा हो। जब जर्मीना उसके पांव पर पट्टी बांध रही थी तो दुख, तकलीफ और बेबसी से भरा एक आंसू जर्मीना की मुख से टूटकर सीधा शाहजैन के जहरीले जख्म पर जा गिरा और वहां एक मोजज़ा हो गया। जर्मीना का वो आंसू कोई आम आंसू नहीं था। इस आंसू में सालों का दुख, बेइंतहा मोहब्बत, भाइयों के लिए तड़प और इंतहाई पाक जज्बा शामिल था। काले जादू की सबसे बड़ी दुश्मन सच्ची और पाक मोहब्बत होती है। जैसे ही इस मोहब्बत और दुख से भरे आंसू ने शाहजैन के खून को छुआ, झोंपड़ी में एक जोरदार सुनहरी रोशनी फैल गई। वो रोशनी इतनी तेज थी कि अरसलान और जावियार ने अपनी आंखें बंद कर ले। एक धमाके की आवाज आई जैसे शीशे की कोई बहुत बड़ी दीवार टूट गई हो। ये दिलरुबा के इस काले जादू का टूटना था। रोशनी मध्यम हुई तो जादू का असर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। जहर अपना असर खो चुका था और शाहजैन ने होश में आकर अपनी आंखें खोली। लेकिन सिर्फ जहर नहीं उतरा था,
उन तीनों भाइयों के दिमाग पर पड़ा हुआ भूल का काला पर्दा भी हमेशा के लिए फट चुका था। उनके दिलों में छपी यादें जैसे किसी समंदर के तूफान की तरह वापस आए। उन्हें अपना बचपन, अपनी बहन की शरारतें, इसकी प्यारी हंसी, इसकी जंजीरों जैसी मासूमियत और फिर वो मंजर जब उन्होंने खुद इसे ठोकर मारकर कुत्तों की तरह महल से निकलवा दिया था। सब कुछ एक एक सेकंड की तरह उनकी आंखों के सामने घूम गया। उन्हें एहसास हो गया कि वो इतने सालों से जिसके गम में अजाब में थे, वो उनकी अपनी सगी दिल की टुकड़ा बहन जर्मीना थी। शाहजैन जैसे ही उठा, इसने सामने फटे पुराने कपड़ों में मिट्टी में सुनी दुखों की मारी जर्मीना को देखा। इसकी वो गुलाब जैसी बहन मुरझाए हुए पांव तले कुचले हुए फूल की तरह जमीन पर बैठी कांप रही थी और उसकी आंखें अभी भी खौफ से झुकी हुई थीं कि शायद इसके भाई इसे फिर से मार ना दे। शाहजैन की चीख निकल गई, जर्मीना मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची। शाहजैन रोते हुए आगे बढ़ा और उसने जर्मीना को इस जोर से अपने गिले से लगाया जैसे वो इसे खुद में समा लेना चाहता हो। जर्मीना जो पहले डरती थी, अपने भाई के असल प्यार को महसूस करके फूट फूट कर रोने लगी। अरसलान और जावियार की आंखों से तो जैसे आंसुओं का खून बह रहा था। वो दोनों भी जमीन पर गिर पड़े और उन्होंने अपनी छोटी बहन को अपने घेरे में ले लिया। हमें मुआफ कर दे मेरी गुड़िया, हमें मुआफ कर दे। हम अंधे हो गए थे, हमारे दिमागों पर काबू कर लिया गया था। हमने तुझे कितना दुख दिया, तेरे उन नर्म पांव को इस जालिम जंगल में रुलने दिया। मैं मर क्यों नहीं गया? अपनी बहन को महल से निकालने से पहले अरसलान अपना सर जमीन पर मार कर रोते हुए चीख चीख कर रो रहा था। झोंपड़ी उन भाइयों के पछतावे, दुख और वापस मिलने की रुला देने वाली आवाजों से गूंज रही थी। जर्मीना ने रोते हुए अपने भाइयों के आंसू पोंछे। भाईजान रोए नहीं, देखे मैं ठीक हूं। मुझे मालूम था कि मेरे भाई ऐसे नहीं हैं। मैं जानती थी ये किसी का जादू है। मुझे कोई दुख नहीं। आप मिल गए तो मेरी जान में जान आ गई। वो इस हाल में भी उन्हें चुप करा रही थी, जिस मासूमियत ने भाइयों को मजीद तोड़ दिया। जब आंसू कुछ थमे तो अरसलान की आंखों में खून उतर आया। ये जरूर इस चुड़ैल दिलरुबा का काम है। इसने हमारा फायदा उठाया और मेरी बहन की ऐसी हालत की। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरसलान ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा। जावियार और शाहजैन ने भी अपने हथियार संभाले। उन्होंने बड़े प्यार और एहतराम से जर्मीना को उठाया। अरसलान ने अपनी गर्म चादर उसके फटे हुए लिबास पर ओढ़ाई और इसे घोड़े पर बिठाकर इसे अपने आगे सीने से लगाकर बिठा लिया ताकि अब कोई एक आंसू भी इसे छू ना सके। चारों बहन भाई जंगल से वापस रोशन आबाद की तरफ चले। रात गुजर चुकी थी और सुबह का सूरज निकल रहा था। जब वो तीनों गुस्से में भरे हुए शहजादे अपनी गुमशुदा बहन को लिए महल के दरवाजे पर पहुंचे तो दरबान से लेकर हर आम इंसान तक ने जर्मीना को पहचान लिया, क्योंकि जादू पूरे मुख से टूट चुका था। लोग रोने लगे और अपनी शहजादी को वापस देखकर उन्होंने आसमान सर पर उठा लिया। शहजादी जर्मीना वापस आ गई का शोर महल में गूंजने लगा। बादशाह सुल्तान शहबाज दौड़ कर आया और जब इसने बरसों बाद अपनी लाडली बेटी को जिंदा देखा तो वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। दिलरुबा जो कमरे में सो रही थी इस शोर से उठी। जब इसने खिड़की से बाहर देखा कि जादू टूट चुका है और वो चारों बहन भाई दोबारा एक हो चुके हैं तो वो घबरा गई। वो अपनी जादुई छड़ी ढूंढने लगी कि वहां से फरार हो जाए, लेकिन तीनों शहजादों ने कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। अरसलान ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पकड़ ली। तूने मेरी बहन को रुलाया है चुड़ैल, तूने हमें अपने खून से दूर किया। दिलरुबा अपनी आंखों से आग फेंकना चाही, लेकिन सच्ची मोहब्बत के सामने काले जादू की एक ना चली। शाहजैन ने इसकी जादुई छड़ी तोड़ दी और जावियार ने इसके गिले से वो काला तावीज उतार कर आग में फेंक दिया जिसमें इसकी जादुई ताकत और जवानी कैद थी। तावीज जलते ही दिलरुबा की सारी खूबसूरती छन गई। वो पिल भर में एक इंतहाई बदशक्ल, बूढ़ी और ड्रोनी चुड़ैल बन गई। इसकी चीखें निकलने लगे। बादशाह जो अब होश में आ चुका था और सब कुछ जान चुका था, इसने हुक्म दिया इस औरत को उन्हीं फटे पुराने कपड़ों में इसी खौफनाक जंगल में फेंका जाए जहां इसने मेरी गुलाब जैसी बेटी को सालों तक तड़पने के लिए छोड़ा था, और उसके हाथ पांव बांध दो ताकि वहां के जानवर इसे अपना शिकार बनाएं। पहरेदारों ने दिलरुबा को घसीटते हुए महल से बाहर निकाला और ले गए। इसके बाद महल में एक ऐसा जश्न मनाया गया जो रोशन आबाद की तारीख ने कभी नहीं देखा था। जर्मीना को गुलाबों के पानी से नहलाया गया। इसे सोने और हीरे जुड़े हुए लिबास पहनाए गए। तीनों भाई अब एक पिल के लिए भी इसे अकेला नहीं छोड़ते थे।
वो इसे हाथों पर बिठा कर रखते और उसकी हर ख्वाहिश पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहते। इसकी खोई हुई मुस्कुराहट वापस आ गई थी और रोशन आबाद में एक बार फिर खुशी लूट आई थी। फूल दोबारा खिल उठे थे और परिंदे इन खुशियों पर गीत गा रहे थे, और वो तीनों भाई ये जान गए थे कि दुनिया की कोई चुड़ैल, कोई काला जादू और कोई भी साजिश सच्चे और पाक रिश्तों की मोहब्बत को कभी शिकस्त नहीं दे सकती। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।